اور وضو کر کے مسجد میں آیا, ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ ساری زندگی تو اس سے دور رہ کے گزار دی, اب زندگی کی شام ہو چکی, اچھی طرح جانتا ہوں, اچھی طرح پہچانتا ہوں, جب شباب تھا, جب جوانی تھی, عروج تھا, جب صلاحیتیں کام کرتی تھی, تیرے در پہ سب نہیں رکھا. اللہ صبح کا بھولا شام کو کھانا آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. میں آ گیا ہوں تیرے در پہ اللہ, اب تیرے در پہ ہی میری جان نکلے گی. آسمان والا کہتا ہے اور تو آ گیا مرنے سے پہلے پہلے, سفید بال لے کے, جھکی کمر لے کے, خالی جیب لے کے تو میرے در پہ آ گیا ہے. میں تیرے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوں گا. تو آ تو سے, تو آ تو سے. وہ سنتا ہے. مائی خولا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے, بیچاری پریشان ہوئی, بیچاری پریشان ہو گئی. خامد نے زہاد کر لیا اور کانتی علیہ کداری امی, تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. جاہلیت میں یہ طلاق تھی, پریشان ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, حضور میرا مسئلہ حل فرماؤ, میرے بچے ہیں, اب میں بچوں کو لے کے جاؤں تو کھلاؤں کہاں سے, چھوڑ کے جاؤں تو بچے پریشان ہوں گے, میرا مسئلہ حل کرو. آپ نے فرمایا بی بی میرے پاس اس مسئلے میں کوئی علم نہیں, ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی. یہ بی بی ایسا ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتی ہوئی, اللہ کے سامنے بات چیت کرتی ہوئی, وہاں بیٹھی بیٹھی اس نے کہا رب کے ساتھ رابطہ کیا اور ایسی باتیں کی. آسمان والے رب نے اسی وقت قرآن نازل کیا, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. اللہ نے اس بی بی کی باتیں آسمان پہ سنا. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے. اور دیکھو بندہ جتنا بھی ذہین ہو, جتنا بھی قابل ہو, دو بندے بات کر رہے ہو تو بات سننا مشکل ہے. اگر 10 بندے بات کر رہے ہو تو بات سننا مزید مشکل ہے. ایک بندے کو 100 بندہ اپنی بات سنا رہا ہو سن لے گا, ان کی بولیاں مختلف ہو سن لے گا, سٹائل مختلف ہو سن لے گا. اللہ بیک وقت کروڑوں انسانوں کی سنتا ہے, بیک وقت, اور ان کی زبانیں مختلف, طریقہ کار مختلف, انداز مختلف. اللہ سب کی سنتا بھی ہے, ان کی حاجات بھی پوری کرتا ہے. آئیے ایک نکتہ, آج کسی سے پوچھے آپ کس بزرگ سے جڑے ہوئے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے ساتھ, ان کی کرامت کیا ہے, پوچھتے ہیں لوگ کرامت کیا ہے, تکلیف فلاں صاحب ان کی بڑی کرامت ہے, انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا, کرامتیں بیان کی جاتی ہے. آئیے اگر کوئی سوال کرے تم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے, کیا اللہ نے سابقہ دور میں بھی کسی کی مشکل کشائی کی یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ سابقہ جو دور گزر چکا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا وقت, کیا تمہارے رب نے جس کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو اس نے کسی کی مشکل کشائی کی یا نہیں کی؟ قرآن اٹھائیے, بھرا پڑا ہے. ایوب علیہ السلام غالباً 18 سال تک بیمار رہے, اللہ سے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین ہے. میرے اللہ نے کہا ایڑی زمین پہ مارو پانی نکلے گا, نہاؤ گے تو باہر کی بیماریاں ختم, پی لو گے تو اندر کی بیماریاں ختم. اور اللہ تو سنتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, پانیوں کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور اس کے اندر جھلی کا اندھیرا, اتنے اندھیرے, فنادا فی الظلمات, ان اندھیروں میں پکارا. اللہ کا علم کتنا وسیع, اللہ اکبر. ان اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ میں مجرم ہوں تو پاک ہے. میرے اللہ نے وہاں سے نجات دی کہ نہیں؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس غم سے نجات دی, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دی. انبیاء کے واقعات بے شمار ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل میں اللہ کو پکارا, اللہ نے مشکل حل کی کہ نہیں؟ اور جنگ بدر میں جب 313 تھے, ادھر 1000 کا لشکر ہے, ادھر اسلحہ بھی کم ہے, گھوڑے تھوڑے ہیں, اونٹ تھوڑے ہیں, اور سامان حرب و ضرب تھوڑا
आपको परेशान, और इतनी दुआएं की आपकी जो चादर ऊपर आपने ओढ़ी हुई थी वो चादर नीचे गिर गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को तरस आया, कहा हुजूर बस कर दीजिए, जितनी आपने दुआ कर दी अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा, इतनी मुश्किल है। बल्कि हदीस के लफ्ज़ अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा फलन तौबा अबदा, अल्लाह ये मुट्ठी भर मेरी जिंदगी की कमाई जो आज बदर में कुफार के मुकाबले में ले आया हूं, अगर ये कट गए, ये शहीद हो गए तो तेरी कभी मेरी इबादत नहीं। जुमले बोले और अल्लाह से दरखास्तें की। उस वक्त मिक़दाद बिन अस्वद ने एक तारीखी जुमला बोला, कहा हजरत परेशान न होइए, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, आप हुक्म दे बरकुल गिमात तक जाने के लिए तैयार हैं, आप परेशान ना हो। हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ऐसे नहीं जिन्होंने कहा था फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, मूसा तू और तेरा रब जाके लड़ाई करो, जब फतह हो जाए तो हमें बताना, हम आके लाके संभाल लेंगे, ज़मीनें संभाल लेंगे। आपको कुछ हौसला हुआ तो अल्लाह ने मदद की कि नहीं की? बेशुमार बात है। खैर आगे एक पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने ये जिनके बारे में मुश्किल कुशाई के दावे किए जाते हैं, इनकी मुसीबतें परेशानियां दूर की है, ये खुद मुसीबतों में फंसे रहे। और देखो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा होते तो आप बदर में परेशान क्यों, आप और में जख्मी क्यों हुए? अगर आप मुश्किल कुशा थे, 70 कारी धोखे के साथ शहीद किए गए, तो आपने क्यों उन्हें दिए? खुबैब को सूली पे लटकाया गया, आपने क्यों बर्दाश्त किया? जरूर मुश्किल कुशा नहीं थे, मुश्किल कुशा कौन है? और मुझे याद आया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम खतीब थे और फरमाया करते थे, लोगों जब मैं मदीने के मुस्तफा को देखता हूँ, उसके उसरत जमाल को देखता हूँ, उसके मुकाम और मर्तबे को देखता हूँ, उसकी इज्जत और शान को देखता हूँ, उसके मुकाम और मर्तबे को देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है अल्लाह इस नबी के सामने झुक जा, एक सजदा कर, इसको रुकू कर। लेकिन मैं जब देखता हूँ रातों के अंधेरों में, खलवतों में वो नबी रब के सामने झुका हुआ ये मिला रहा है, आजिज़ी कर रहा है, मैं तो बताऊं तू इसके सामने न झुक, जिसके सामने ये झुक रहा है उसके सामने, जिसने इतना प्यारा महबूब बनाया और इतना मुकाम मर्तबा था कि उसके सामने झुक। तो अंबिया भी मुश्किलात में, याकूब अलैहिस्सलाम की मुश्किलात, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुश्किलात, दीगर नबियों की मुश्किलात हमारे सामने, नबियों पे मुश्किलात आई कि नहीं आई है? जब नबियों पे मुश्किलात आई है तो नबियों की मुश्किल कुशाई किसने की है? अल्लाह ने की है। आइए पीराने पीर के हवाले से मेरा दिल चाहता है कि आपको उनका भी एक कौल सुना दूं ताकि मसला हल हो जाए। कई लोगों के हवाले से बड़ा शुबा रहता है कि ये तो जी गौसे आजम है। क्या है? गौसे आजम। पीर अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमा आलुल हदीस थे, किताब और सुन्नत के पैरोकार थे। मेरे पास वक्त नहीं, मैं वरना उनके अक़वाल से, गुनियतुत तालिबीन, फुतूहुल गैब की बातों से आपको साबित करता कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमा वो किताब और सुन्नत के पैरोकार थे, मुक़ल्लिद नहीं थे। आज लोग कहते हैं कि हमली थे, मुक़ल्लिद थे। जो पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई माई कलाम उसमें जुर्अत है तो साबित करके दिखाए पीर साहब मुक़ल्लिद थे। मुक़ल्लिद और वली कामिल के दरमियान तो ज़मीन आसमान का फर्क है। मुक़ल्लिद वली नहीं हो सकता। और इब्न रजब हम्बली ने तबक़ात में लिखा है इन्नल वलिय्यन कामिला ला यकून मुक़ल्लिदा। लोगों सुन लो, जो वली कामिल होता है वो मुक़ल्लिद हो ही नहीं सकता। और शामी ने लिखा है अल वलिय्यु अन यकूना ताबियन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों सुन लो, वली बनता ही वो है जो नबी का पैरोकार। अभी आप इत्तिबा रसूल के हवाले से सुन रहे थे, वली वो होता है जो रसूल का पैरोकार हो, दूसरा बंदा वली बन ही नहीं सकता। आइए उनका एक कौल आपको सुनाता हूँ, फुतूहुल गैब के अंदर ये कौल मौजूद है। फुतूहुल पीर
साहब ने 5 किताबें लिखी है। 2 किताबें उनकी बड़ी शोहरत मार्कतुल अराब किताब बड़ी शोहरत हासिल की उन्होंने। एक बुनियादुत तालिबीन है और दूसरी फुजूल गैब है। कितनी शोहरत मिली, दुनिया की हर जिंदा जुबान में इन दोनों किताबों का तर्जुमा मौजूद है। इतनी शोहरत मिली है। और फुजूल गैब की इबारत आपके सामने रखने लगा हूं। क्या कहते हैं? अलैका बितक़वल्लाह, पूरी बात पढ़ लेगा। अलैका बितक़वल्लाह वला तख़फ अहदन सिवल्लाह वला तरजूहु अहदन सिवल्लाह वक्किलिल हवाइज इलल्लाह वक्किलिल हवाइज इलल्लाह। और आगे फरमाया वहतलुब जमीअ मिन वला तातमिद इल्ला अलैहि वला तसिक बिअहदिन गैरल्लाह। आगे क्या फरमाते हैं? अत्तौहीदा अत्तौहीदा, 2 मरतबा ये कलमा लिखा है। तर्जुमा सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो लोग पीराने पीर के बारे में मोहब्बत रखते हैं, आइए पीराने पीर का मनहज अपनाइए। क्या मनहज था? कहते अलैका बितक़वल्लाह, ऐ मेरे साथ मोहब्बत करने वाले, मेरी किताब को पढ़ने वाले, अल्लाह से डर जा। अल्लाह का डर अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। वला तख़फ अहदन सिवल्लाह, रब के सिवा किसी से न डरना। ये किसका अकीदा है? आलिम हदीस का, कि रब के सिवा किसी से नहीं डरना। डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। अलैका बितक़वल्लाह, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर। वला तख़फ अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से न डरना। वला तरजूहु अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद ना रखना। और गैरों से उम्मीदें रखने वालों, अल्लाह की नहीं मानते, हदीस की नहीं मानते, आइए पीराने पीर की मान लो, जो कुरान हदीस की तालीम दे रहे हैं। वला तरजूहु अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी पे उम्मीद ना करना। वक्किलिल हवाइज इलल्लाह, अपनी सारी जरूरतें, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफें अल्लाह के सामने पेश करो। अल्लाह के सामने पेश करो। वला तातमिद इल्ला अलैहि, भरोसा करना है तो सिर्फ अल्लाह पर। वला तसिक बिअहदिन गैरल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी पे एतमाद ना करना। अल्लाह के सिवा किसी पे कोई एतमाद नहीं। आगे फरमाते हैं वतलुब जमीअ मिनहु, जो भी मांगना है अल्लाह से मांग। कैसा अकीदा है? जो भी मांगना है अल्लाह से मांग। हमारा क्या अकीदा है? जो भी मांगना है अल्लाह से मांग। कुरान का अकीदा क्या है? जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांग। हदीस का क्या अकीदा है? जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांग। और पीर ने क्या अकीदा कुरान हदीस का बयान किया? वतलुब जमीअ मिनहु, सब कुछ अल्लाह से मांग। औलाद मांगनी है तो अल्लाह से, रिज़्क़ मांगना है तो अल्लाह से, शिफा मांगनी है तो अल्लाह से, अल्लाह से मांग। आगे क्या फरमाते हैं? अत्तौहीदा अत्तौहीदा, अल्लाह अकबर। क्या माना? तौहीद को लाज़म पकड़ लो, तौहीद को लाज़म पकड़ लो। 2 मरतबा कहा। पीर साहब ने मसले को हल कर दिया। लोगों, अगर नजात है तो अकीदा तौहीद के साथ, मांगना है तो अल्लाह से, जरूरतें परेशानियां रखनी है तो अल्लाह के सामने, मुश्किल कुशाई करवानी है तो अल्लाह से, वही मुश्किल कुशा है। तो मेरे भाइयों, आज हमारा जो उन्वान था अल्लाह ही मुश्किल कुशा, तो उस हवाले से मैंने कुछ गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखी है। मुझे उम्मीद है आप अहबाब को इन बातों की समझ आई, आप इनको याद करें और दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाए। अल्लाह ताला आपका बैठना, सुनना और मेरा बयान करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।